This is me, Punesh Kumar Temre, and in today's class of design and analysis of algorithm, we have to go for the topic Prim's algorithm. So, what exactly Prim's algorithm is? So, Prim's algorithm is a greedy algorithm that finds a minimum spanning tree for a weighted and directed graph. This algorithm was developed in 1930 by Wojciech Jarnik. It is a Czech mathematician. Later, this particular algorithm was rediscovered and republished by computer scientist Robert C. Prim in 1957 and Yezgar Dijkstra in 1959, and therefore it is also sometimes called as Jarnik's algorithm or Prim's Jarnik algorithm or Prim-Dijkstra algorithm or the DJP algorithm. Most commonly, this algorithm is called as Prim's algorithm. So here we have to understand the working principle of Prim's algorithm. This particular algorithm starts with a tree containing a root vertex. Then it's build the tree by one vertex at a time. And at each step, it adds the cheapest possible connection from the tree to the another vertex. So this is what the working principle. Now we have to understand the greedy algorithm designed by Prims to formulate a minimum cost spanning tree. So particularly algorithm name is MST prim and here we are passing three parameters. आप देख सकते हैं तीन parameters. First one is a graph. Second one is a weight associated with all the edges in that particular graph. And third one is called as a root vertex, root or a source. तो particularly हम spanning tree कहाँ से बनाना start करेंगे? That position or that vertex is called as a root vertex. Then this particular algorithm works in two steps. Here, step one is the initialization step, whereas second step is called as iteration steps. So we have to understand the pseudocode for step one and step two. So first we have to go for the pseudocode of step one, that is initialization. For each vertex u belongs to v of g. It means graph के हर एक vertex के लिए what we have to do? We have to do key of g equals to infinity. यानी हर एक vertex के लिए हमें key value find out करना है. And this key value should be equals to infinity. Then pi of u equals to mean. अब pi of u का मतलब क्या है? तो pi of u का मतलब है parent of that particular node. तो जैसे अगर मैं वर्टेक्स u की बात कर रहा हूँ तो वर्टेक्स u का parent कौन है? उस पर्टिकुलर नोड पे हम कहाँ से पहुंच रहे हैं? दैट इज व्हाट कॉल्ड एज पेरेंट. तो इनिशियली जितने भी हमारे पास वर्टेक्सेस है हर एक वर्टेक्सेस के लिए हमें पेरेंट सेट करके रखना है नील. देन key of r will be equals to 0 and a key value of root vertex should be equals to 0 and q will contains v of g यानी हमें यहाँ पे q बनाना है and this particular q will contain all the vertices of the graph. So this is about the step number 1 of initialization. तो in short अगर हम कहें तो हमें क्या करना है? ग्राफ के जितने भी वर्टिसेस है हर एक के लिए की वैल्यू इंफिनिटी सेट करके रखना है. सभी के लिए पेरेंट सेट करके रखना है. जो भी हमारा नोड वर्टेक्स रहेगा उसके लिए की वैल्यू 0 सेट करके रखना. और ग्राफ के जितने भी वर्टाइसेस हमारे पास है ये सारे के सारे वर्टाइसेस को हमें एक क्यू में इंसर्ट करके रखना है. जिस क्यू का नाम हमने दिया है क्यू and this queue will contains all the vertices of a graph. So this is about the step 1 initialization. And now we have to go for the pseudocode of step number 2 which is called as iteration. तो step 2 हमारा iterative step है. अब ये iterations हम कब तक परफॉर्म करेंगे? तो iterations परफॉर्म करेंगे while q not equals to 5. यानी जब तक कि आपका q एम्प्टी नहीं होता. तो इनिशियली आपने आपके q में क्या रखा है? आपने q में ग्राफ के सारे वर्टिसेस रखे हैं. जब तक कि ये q पूरी तरह से एम्प्टी नहीं होता. अब हर इटरेशन में हमें इस क्यू में से एक नोड निकालना है यानी एक वर्टेक्स हमें निकालना है. गेट. तो हर इटरेशन में एक नोड निकलेगा और बाकी रिमेनिंग नोड्स जो रहेंगे जो एक्चुअल जितने थे दैट -1 इतना रहेंगे. तो ये बार बार हमें परफॉर्म करना है और ये वाले इटरेशन हमें तब तक चलाना है जब तक कि हमारा क्यू नॉन एम्प्टी. Getting it? As soon as our queue will become empty, then we have to terminate. This will be the stopping criteria. So every time we have to check क्या हमारा queue empty है क्या. If our queue is not empty, then what we have to do? We have to do u is equals to extract minimum from queue. तो हमारे queue में जितने भी vertices है वो vertices में से उस vertex को निकालना है जिसका की वैल्यू सबसे कम है. तो की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे दैट वी हैव टू स्टडी लेटर ऑन. बट जितने भी हमारे पास क्यू में
नोड्स रहेंगे या वर्टेक्स रहेंगे, हर एक नोड वर्टेक्स के साथ एक एसोसिएटेड वैल्यू जो रहेगा दैट विल बी द की वैल्यू, और जिस पर्टिकुलर नोड का या वर्टेक्स का की वैल्यू सबसे मिनिमम रहेगा दैट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट, और उस पर्टिकुलर नोड को या उस पर्टिकुलर वर्टेक्स को हम कहेंगे यू, एंड देन we have to identify v, and v should be the adjacent of u, यानी ऐसा नोड जिसको भी हमने एक्सट्रैक्ट किया जिसका की वैल्यू सबसे मिनिमम था, उसके के सारे एडजेसेंट्स हमें आइडेंटिफाई करना है, और हर एडजेसेंट को अभी हम बोलेंगे v, एंड फॉर एवरी एडजेसेंट वी हैव टू परफॉर्म वेदर v बिलोंग्स टू q, यानी क्या आपका जिस एडजेसेंट की हम बात कर रहे हैं वो एडजेसेंट आपके क्यू पे बिलोंग करता है क्या, दिस इज पर्टिकुलरली दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज ए लाइव नोड, यानी वो पर्टिकुलर एडजेसेंट नोड लाइव नोड है क्या, एंड w ऑफ uv इज लेस देन की वैल्यू ऑफ v, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई अगर हो रही है तो देन वी हैव टू अपडेट द पेरेंट ऑफ v, and parent of v will be updated as pi of v will be equals to u. Also we have to update the key value of v, and key value of v will become w of u. Getting it? So this is about the pseudocode of step number 2. तो step number 2 टोटली इटरेटिव स्टेप है, जब तक के हमारा क्यू पूरी तरह से यूनिटी नहीं होता तब तक ये इटरेशन हमें परफॉर्म करना है। गेटिंग इट? तो नाउ वी हैव टू स्टडी the stepwise illustration or a demonstration of this minimum spanning tree algorithm given by Prim's to compute minimum spanning tree with the help of one example. So here we have one problem. So problem 1, illustrate stepwise execution of Prim's algorithm on the following graph to construct minimum cost spanning tree. Assume vertex A as a source vertex. तो पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे ये ग्राफ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं टोटल 5 वर्टाइसेस है, और ये 5 वर्टाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी इस तरीके का है। तो ये कनेक्टिविटी देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारा ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ है, और हर एक एज के साथ एसोसिएटेड एज वेट्स कुछ इस तरीके के हैं। एंड नाउ इट इज गिवन दैट वी हैव टू अज्यूम सोर्स वर्टेक्स एज अ वर्टेक्स ए, इसलिए रूट वर्टेक्स या सोर्स वर्टेक्स हम वर्टेक्स ये को कहेंगे, जिसको हमने यहाँ पे रेड मार्क से या रेड एरो से इंडिकेट करके रखा हुआ है। तो बाय स्टार्टिंग विथ ये वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम स्पैनिंग ट्री बाय यूजिंग Prim's algorithm. This is what the problem, and now we have to go for the solution. So here we have solution step 1, and step 1 is initialization. So what we have to do in initialization? So for each vertex u belongs to v of g, we have to do key value of u is equals to infinity. तो जितने भी नोड्स हमारे पास है सबके लिए हमें की वैल्यू इन्फिनिटी सेट करना है, एंड दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं नोड ए के लिए हमने वैल्यू इन्फिनिटी सेट किया, की वैल्यू ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, फॉर बी इट शुड बी इन्फिनिटी, फॉर सी इट शुड बी इन्फिनिटी, फॉर डी शुड बी इन्फिनिटी, एंड फॉर ई शुड बी इन्फिनिटी. So this is what the demonstration of first two line. Then next is pi of u is equals to nil. तो जितने भी वर्टाइसेस है सबके पेरेंट हमें नील सेट करके रखना है। तो यहाँ पे हमने पेरेंट नील को इस तरीके से इंडिकेट किया है कि हमने किसी भी तरह का यहाँ पे एरो नहीं दिया हुआ है। तो जनरली पेरेंट इंडिकेट कराने के लिए डायरेक्टेड एज हम आगे चल के यूज करने वाले विद डिफरेंट कलर, तो यहाँ पे हमने पेरेंट इज इक्वल्स टू नील इंडिकेट करने के लिए कुछ भी चेंजेस परफॉर्म नहीं किए हैं। देन की वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0। तो अभी हमारा आर कौन है? आर यानी हमारा रूट। तो हमें दिया गया था कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में हमें रूट कंसीडर करना है नोड ए को, दैट इज हमारा सोर्स जो रहेगा नोड ए रहेगा। तो नोड ए का इनिशियल की वैल्यू हमने इन्फिनिटी करके सेट करके रखा हुआ है, बट नाउ विथ रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूशन ऑफ लाइन नंबर 4 की वैल्यू ऑफ आर शुड बी इक्वल्स टू 0, एंड दैट्स व्हाई अभी की वैल्यू ऑफ आर ए जो रहेगा दैट शुड बी इक्वल्स टू 0. देन we have to execute line number 5, q will be equals to v of g, यानी हमारे ग्राफ के जितने भी वर्टाइसेस है वो सभी को ये क्यू में डालना है। तो हमारे ग्राफ में टोटल वर्टाइसेस कितने 5, ये सभी को हमें ये क्यू में डालना है। तो हमने डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है क्यू, और उस क्यू डेटा स्ट्रक्चर में हमने सारे के सारे वर्टाइसेस डाल के रखे। हर एक वर्टेक्स के साथ उसका एसोसिएटेड वैल्यू जो है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज की वैल्यू, हमने की वैल्यू भी यहाँ पे स्टोर करके रखा है। तो आप देख सकते हैं वर्टेक्स ए का की वैल्यू 0 था इसलिए यहाँ पे 0 है, वर्टेक्स बी का की वैल्यू इन्फिनिटी था इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटी है। तो इसी तरीके से हर एक नोड और उसका एसोसिएटेड की वैल्यू हमने स्टोर करके रखा है। तो दिस वाज अबाउट द स्टेप 1 व्हिच इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन, एंड नाउ वी हैव टू गो टू स्टेप 2. तो हियर वी हैव स्टेप 2, एंड स्टेप 2 इज इटरेटिव स्टेप। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल इटरेशंस परफॉर्म करने,
और मल्टीपल इटरेशंस परफॉर्म करते हो, इटरेशंस कब तक चलेंगे, तो व्हाइल क्यू नॉट इक्वल्स टू 5, जब तक कि आपका क्यू पूरी तरह से एम्प्टी नहीं होता तब तक कि आपको इटरेशंस परफॉर्म कर लिए। और हर इटरेशन में आपको करना क्या है, सबसे पहले यू फाइंड आउट करना है। तो यू का मतलब क्या होगा, तो यू का मतलब है एक्सट्रैक्ट मिनिमम फ्रॉम क्यू। तो आपके क्यू में ऐसा वाला नोड जिसका की वैल्यू सबसे मिनिमम है, तो जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे मिनिमम वाला नोड जो रहेगा दैट विल बी द वर्टेक्स। क्यों, क्योंकि इसका की वैल्यू सबसे कम है, दैट इज 0। देन वी हैव टू गो फॉर ईच वी बिलोंग्स टू एडजेसेंट ऑफ यू, यानी अभी अभी हमने यू फाइंड आउट किया था, अब उस यू के सारे एडजेसेंट, अब यू के सारे एडजेसेंट्स कौन से होंगे, तो जैसे अगर हम यू यहाँ कंसीडर अगर करते ये, तो ये के एडजेसेंट्स कौन से होंगे, ये के इमीडिएट एडजेसेंट, तो ये का इमीडिएट एडजेसेंट बी हो सकता है, ये का इमीडिएट एडजेसेंट सी हो सकता है, ये का इमीडिएट एडजेसेंट डी हो सकता है। तो ऐसे हमको वी आइडेंटिफाई करना है और हर एक वी के लिए हम चेक करना है ये वी बिलोंग्स टू क्यू, यानी वी आपके क्यू पे एग्जिस्ट करता है क्या, एंड डब्ल्यू ऑफ यू वी इज लेस देन की वैल्यू ऑफ वी। ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही होगी तो देन हमें दो चीजें परफॉर्म करना है। पहला, तो वी का पेरेंट हमें अपडेट करना है, दैट इज pi of v will be equals to u and की वैल्यू ऑफ v will be equals to w of v भी। इस तरीके से दो अपडेशन हमें परफॉर्म करना है। तो अभी आगे चल के हम हर एक इटरेशंस में ये सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो दिस वाज अबाउट द what exactly we are going to perform in every iteration, and now we have to go for one by one iteration. So here we have to go for iteration 1। तो इटरेशन 1 में सबसे पहले चेक करना है कि भाई क्यू नॉट इक्वल्स टू 5 है क्या, तो क्या आपका क्यू एम्प्टी है क्या, नहीं, आपकी क्यू में टोटल 5 नोड्स है, एंड दैट्स व्हाई हियर वी कैन से दैट आवर क्यू इज नॉट एम्प्टी। और क्यू अगर एम्प्टी नहीं है तो डेफिनेटली हम इटरेशन 1 में जाएंगे। जब इटरेशन में जाएंगे तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है यू, एक्सट्रैक्ट मिनिमम फ्रॉम क्यू। तो आपके क्यू में से मिनिमम वाला नोड कौन सा है, जिसका की वैल्यू सबसे कम है, कौन सा नोड है, ए, एंड दैट्स व्हाई हियर यू विल बिकम ए। तो इस तरीके से हमने यू को आइडेंटिफाई किया। जैसे ही हमने यू आइडेंटिफाई किया देन वी हैव टू गो फॉर चेकिंग ऑफ फॉर ईच वी बिलोंग्स टू एडजेसेंट ऑफ यू। तो जब भी हमने एक्सट्रैक्ट मिनिमम फ्रॉम क्यू किया था, यानी यू को हमें निकालना था, तो हमने यहाँ पे यू को निकाल दिया, दैट इज व्हाट इंडिकेटेड बाय दिस पर्टिकुलर स्लैश, एंड देन वी हैव टू गो फॉर ईच वी बिलोंग्स टू एडजेसेंट ऑफ यू, यानी भी हमें आइडेंटिफाई करना है। तो भी यू कौन है हमारा, ए, तो ये के एडजेसेंट कौन कौन हो सकते हैं, तो ये के एडजेसेंट हो सकते हैं बी सी एंड डी, एंड देयरफॉर हियर अगर हम वी चेक करने जाएंगे तो वी विल बिकम एडजेसेंट ऑफ ये, दैट विल बी बी सी डी। तो अभी बी सी डी के लिए हमें जो कंडीशन अप्लाई करना है वो है इफ वी बिलोंग्स टू क्यू एंड डब्ल्यू ऑफ यू बी लेस देन की वैल्यू ऑफ वी, तो देन वी हैव टू गो फॉर अपडेशन ऑफ पेरेंट ऑफ वी एज वेल एज वी हैव टू गो फॉर द अपडेशन ऑफ की वैल्यू ऑफ वी। तो अभी वन बाय वन हम हर एक एडजेसेंट के लिए चेक करेंगे। तो सबसे पहला एडजेसेंट जो रहेगा दैट विल बी बी, तो हियर वी हैव टू गो फॉर बी। तो अभी हमारा यू कौन है, ए, और वी कौन है, बी। तो ये और बी इस पर्टिकुलर एडजेसेंट की हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमें चेक करना है वेदर वी बिलोंग्स टू क्यू, बी कौन है हमारा, बी, तो बी बिलोंग्स टू क्यू है क्या, यस, बी आपका क्यू पे अवेलेबल है, दैट इज व्हाट v बिलोंग्स टू q, ये कंडीशन ट्रू है। और बाद में आपको चेक करना है w ऑफ u v लेस देन की वैल्यू ऑफ v है क्या, w ऑफ u v यानी इस पर्टिकुलर एज का वेट, एज का वेट क्या है 2, तो u बोले तो ये और v बोले तो b, तो w ऑफ u v बोले तो w ऑफ ये b, w ऑफ ये b का वेट कितना हो गया 2, जबकि की वैल्यू ऑफ v, की वैल्यू ऑफ v यानी क्या हो गया इन्फिनिटी। तो वेदर 2 इज लेस देन इन्फिनिटी, ये कंडीशन ट्रू आ रहा है क्या, तो डेफिनेटली ये वाला कंडीशन ट्रू आ रहा है। एंड दैट्स व्हाई अगर हम कंडीशन चेक करते हैं कि b बिलोंग्स टू q एंड w ऑफ a b इज लेस देन की वैल्यू ऑफ b, तो ये कंडीशन ट्रू आ रहा है। और ये कंडीशन ट्रू आने की वजह से हमें पेरेंट भी अपडेट करना पड़ेगा और की वैल्यू भी अपडेट करना पड़ेगा। तो पेरेंट जब अपडेट करेंगे तो पाई ऑफ b विल बिकम ये, तो हियर पाई ऑफ b विल बिकम ये, और पाई ऑफ p विल बिकम ये को हमने यहाँ पे ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी हम ये बोल रहे हैं कि बी का पेरेंट कौन है, ये इस चीज को इंडिकेट किया हमने ग्रीन कलर के एरो से, यानी ग्रीन कलर वाला एरो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि बी पे हम वाया ये पहुंच सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई बी का पेरेंट कौन रहेगा ए। तो दिस इज व्हाट द एग्जीक्यूशन ऑफ पाई ऑफ बी विल बिकम ये, एंड देन वी हैव टू अपडेट द की वैल्यू ऑफ वी, और की वैल्यू ऑफ v जब हम अपडेट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू w ऑफ uv। तो w ऑफ uv यानी इस पर्टिकुलर एज का वेट कितना रहेगा 2, तो दिस पर्टिकुलर 2 वेट विल बी असाइन्ड टू द की वैल्यू ऑफ b,
दिस इज व्हाट की वैल्यू ऑफ बी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ ये बी, और इस पर्टिकुलर चीज को हमने यहाँ पे अपडेट किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनिशियली ये वेट इंफिनिटी था, तो इंफिनिटी को क्रॉस करके हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 2, और यही अपडेशन अभी हमारे क्यू में हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो हमने बी का वेट जो था वो 2 अपडेट किया है, दैट्स व्हाई आप यहाँ देख सकते हैं कि बी का वेट अपडेट करके अभी हमने 2 करके रखा है, गेटिंग इट। तो दिस वाज फॉर फर्स्ट एडजेसेंट बी, नाउ वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट एडजेसेंट। तो हमारा नेक्स्ट एडजेसेंट जो है दैट इज व्हाट सी। तो अभी हम सी के लिए चेक कर देते हैं। तो जैसे ये सी है, तो सी के लिए चेक करना है क्या सी आपका क्यू पे एग्जिस्ट करता है क्या, यस, तो आपका सी क्यू पे एग्जिस्ट करता है। बाद में आपको चेक करना है डब्ल्यू ऑफ ये सी, डब्ल्यू ऑफ सी कितना है 4, वेदर 4 इज लेस देन की वैल्यू ऑफ सी, की वैल्यू ऑफ सी कितना है इंफिनिटी, यानी आपको कंडीशन चेक करना है वेदर सी बिलोंग्स टू क्यू, यस, and w of AC and 4 is less than की value of C and infinity, yes 4 is less than infinity, therefore ये कंडीशन आपका ट्रू आ रहा है। और जब ये कंडीशन आपका ट्रू आएगा तो आपको सबसे पहले तो पेरेंट चेंज करना पड़ेगा C का, एंड दैट्स व्हाई आप यहाँ कह सकते हैं कि पाई ऑफ C विल बिकम ये, और इस चीज को हमने ग्राफिकली इस तरीके से इंडिकेट किया हुआ है। देन वी हैव टू अपडेट द की वैल्यू ऑफ C, और C का की वैल्यू अगर हम अपडेट करते तो दैट विल बिकम W ऑफ AC, और W ऑफ AC का वैल्यू है 4, एंड दैट्स व्हाई ये इंफिनिटी से कट होकर अभी अपडेट क्या हो जाएगा 4, और यही अपडेशन हमें यहाँ पे क्यू में परफॉर्म करके रखना है। एंड दैट्स व्हाई अभी आप देख सकते हैं कि सी का वेट की वैल्यू जो है वो हमने अपडेट करके रखा है। तो दिस वाज फॉर सेकंड एडजेसेंट सी। नाउ वी हैव टू गो टू थर्ड एडजेसेंट दैट इज डी। तो जब हम थर्ड एडजेसेंट डी के लिए जाएंगे, तो डी के लिए जाते वक्त मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एडजेसेंट। तो सबसे पहले तो चेक करना है क्या डी आपका क्यू पे एग्जिस्ट करता है क्या, तो डी आपका क्यू पे एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ। बाद में आपको कंडीशन चेक करना है डब्ल्यू ऑफ ए डी से के मुकाबले की वैल्यू आपका ज्यादा है क्या, यानी डब्ल्यू ऑफ ए डी इज लेस देन की वैल्यू ऑफ डी, तो डब्ल्यू ऑफ ए डी यानी कितना हो गया 3, जबकि की वैल्यू ऑफ डी कितना हो गया इंफिनिटी, यानी 3 इज लेस देन इंफिनिटी, यस, यानी पूरा का पूरा कंडीशन आपका ट्रू आ रहा है। डी बिलोंग्स टू क्यू, यस, एंड डब्ल्यू ऑफ ए डी इज की वैल्यू ऑफ डी ट्रू है। तो अभी आपको डी का पेरेंट चेंज करना पड़ेगा, और डी का पेरेंट जब आप चेंज करोगे तो यार पाई ऑफ डी विल बिकम ये, और इसी चीज को हमने ग्राफिकली यहाँ पे दिखाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है, और अभी हमें डी का की वैल्यू भी अपडेट करना पड़ेगा। तो डी का की वैल्यू अपडेट जब हम करेंगे तो इन्फिनिटी से निकल के कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आपको अपडेशन दिख रहा है, और सेम अपडेशन हमको यहाँ पे क्यू में परफॉर्म करने हैं, तो सेम अपडेशन क्यू में परफॉर्म करेंगे, तो इन्फिनिटी कट करके हमने कितना कर दिया 3। तो इन दिस वे वी हैव डन फॉर all the three adjacents, that is v is equals to bct, and therefore this is what the output of the iteration है। तो फाइनली अगर हम कहेंगे तो आफ्टर इटरेशन 1 के बाद हमारा फाइनल ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से है, गेटिंग। तो ये के लिए हमारा जो डिस्टेंस है वो है 0, यानी की वैल्यू 0 है, बी के लिए 2 है, सी के लिए 4 है, ई के लिए इंफिनिटी और डी के लिए 3 है। जबकि बी पे हम ये से आ सकते हैं, और सी पे हम ये से आ सकते हैं, और डी पे हम ये से आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पैरेंट इंडिकेट करके रखे, गेटिंग इट। तो अभी इटरेशन 1 के बाद का हमारा फाइनल ग्राफ कुछ इस तरीके से था, और हमारा क्यू जो था वो इस तरीके से था। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे क्यू में बी का वैल्यू जो है वो 2 है, सी का 4 है, डी का 3 और ई का क्या है इंफिनिटी, और रिस्पेक्टिव पेरेंट्स हमने इस तरीके से इंडिकेट किया है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर ग्राफ और दिस पर्टिकुलर वैल्यू as the input, now we have to go to next iteration, that will be the iteration 2. So here we have iteration 2. तो इटरेशन 2 में सबसे पहले फिर से चेक करना पड़ेगा व्हाइल क्यू नॉट इक्वल टू 5 है क्या, आपका क्यू एम्प्टी है क्या। तो आप देख सकते हैं आपका क्यू एम्प्टी है क्या, नहीं, अभी भी 4 नोड है। तो हियर 4 नोड्स आर देयर, तो डेफिनेटली हम इटरेशन 2 के लिए जाएंगे। तो क्यू अगर एम्प्टी नहीं है तो इटरेशन 2 के लिए जब जाएंगे तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यू, दैट इज मिनिमम वैल्यू फ्रॉम क्यू। अब क्यू में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, आप देख सकते हैं 2 4 3 इंफिनिटी, कम कौन है 2, दैट इज फॉर बी, यानी यू का वैल्यू हो जाएगा बी, देयरफॉर हियर वी हैव यू इज इक्वल टू बी। तो अभी हम बी के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले बी को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो बी को एक्सट्रैक्ट किया, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया, आप यहाँ देख सकते हैं। देन वी हैव टू गो फॉर फाइंडिंग द एडजेसेंट ऑफ बी, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज बी। तो बी यानी एडजेसेंट ऑफ बी, तो बी के एडजेसेंट कौन कौन है, तो बी के एडजेसेंट जो है वो है डी और सी, एंड देयरफॉर हियर B will be equals to adjacent of B, that will be equals to either C and D or D और C। तो आप मैंने सबसे पहले C को लिया है and then D, तो therefore adjacents are C and D। तो अभी C और D के लिए हमें कंडीशन चेक करना पड़ेगा।
एंड कंडीशन जो रहेगी वो रहेगी इफ v belongs to q and w of u be less than key value of v, then we have to update the parent of v and we have to update the key value of v. तो सबसे पहले हम जाएंगे फॉर एडजेसेंट सी के लिए। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं सी के लिए क्या आपका सी क्यू पे बिलोंग करता है क्या, डेफिनेटली। और बाद में आपको W ऑफ बी सी कितना है 1 इज लेस देन की वैल्यू ऑफ सी कितना है 4, ये कंडीशन ट्रू आ रहा है क्या वो चेक करना है। तो हियर दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू, क्यों, क्योंकि सी जो है वो आपका क्यू पे बिलोंग करता है एंड W ऑफ बी सी यानी 1 इज लेस देन की वैल्यू ऑफ सी यानी 4, 1 इज लेस देन 4 आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज ट्रू। तो देयरफॉर व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट सबसे पहले तो हमें अपडेट करना पड़ेगा पेरेंट, और पेरेंट ऑफ सी विल बिकम बी, तो देयरफॉर पेरेंट ऑफ सी विल बिकम बी, और इस चीज को ग्राफिकली हम इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। तो अभी सी के दो पेरेंट नहीं रह सकते, सी का कोई एक पेरेंट रह सकता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने बोला है कि सी का पेरेंट एक बी है और सी का पेरेंट ये टी है। तो अभी जो हमने पेरेंट लेटेस्ट पेरेंट जो है वो कौन है हमारा बी, एंड दैट्स वाई पुराना वाला पेरेंट हमको हटाना पड़ेगा। तो भी पुराना पेरेंट जो रहेगा दैट इज ए, तो ये पेरेंटल वाला एज हमने कट कर दिया है। एंड देन वी हैव टू अपडेट द की वैल्यू ऑफ सी। नाउ की वैल्यू ऑफ सी विल बिकम डब्ल्यू ऑफ बी सी, और डब्ल्यू ऑफ बी सी का वैल्यू जो है दैट इज 1, एंड देयरफॉर हियर की वैल्यू ऑफ सी हमने अपडेट किया है, 4 को कट करके कर दिया 1, एंड यही चेंजेस हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। तो देयरफॉर की वैल्यू ऑफ सी विल बिकम 1, गेटिंग इट। So this is about the first adjacent, that is C. Now we have to go for the next adjacent, that is D. So here we have to go for the adjacent D. तो second adjacent D की अगर हम बात करते हैं तो first we have to check whether D belongs to Q or not. तो D आपका Q पे belong करता है क्या? Yes. Second आपको check करना है कि W of AD is less than Q value of D or not. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि D belongs to Q, ये कंडीशन ट्रू तो आ रहा है, लेकिन सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन जो है दैट इज W ऑफ BD। तो W ऑफ BD क्या है, W ऑफ BD इज 6, दिस 6 इज लेस देन की वैल्यू ऑफ D, की वैल्यू ऑफ D कितना है 3, तो 6 इज लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू आ रहा है क्या, नो, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर कंडीशन विल बिकम फॉल्स। और जब कोई भी ये कंडीशन फॉल्स होता है तो देयर इज नो नीड टू अपडेट द पेरेंट एज वेल एज नो नीड टू अपडेट द की, and that's why there will not be the updations। तो अभी जो है वो as it is रहेगा, therefore we don't have to do nothing, and therefore after iteration 2 अगर हम देखेंगे तो after iteration 2 हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का है। हमारे दो नोड्स, नोड ए और नोड बी, ये परमानेंट नोड हो चुके हैं। परमानेंट नोड का मतलब है कि ये नोड को हमने क्यू से निकाल चुके हैं, और क्यू से निकालने के बाद इनके डिस्टेंसेस जो थे या की वैल्यू जो थी वो थी 0 और 2, जबकि रिमेनिंग नोड्स जो है ये अभी भी लाइव नोड्स है, यानी क्यू पे दैट इज डी ई एंड सी, इनके डिस्टेंसेस या की वैल्यू जो है वो है 3, इंफिनिटी एंड 1। और पेरेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो डी का पेरेंट ये है, बी का पेरेंट ये है, सी का पेरेंट जो है वो बी है। तो दिस इज व्हाट द आउटपुट आफ्टर इटरेशन 2, एंड नाउ वी हैव टू गो टू इटरेशन 3। तो नाउ वी हैव टू गो टू इटरेशन 3। तो इन इटरेशन 3 फर्स्ट वी हैव टू चेक whether क्यू इज एम्प्टी और नॉट। तो आपका क्यू एम्प्टी है क्या, आपके क्यू में अभी भी 3 नोड्स हैं, और अगर आपके क्यू में अभी भी 3 नोड है इसका मतलब हमें इटरेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो वी हैव टू गो फॉर इटरेशन 3। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यू यानी एक्सट्रैक्ट मिनिमम फ्रॉम क्यू। तो आपकी क्यू में से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, सी, दैट इज सी इज इक्वल टू 1, एंड देयरफॉर हियर वी हैव टू एक्सट्रैक्ट यू, और यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यू जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू सी। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा सी यानी सबसे मिनिमम वैल्यू है। देन वी हैव टू एक्सट्रैक्ट इट करना है, इसका मतलब हमने इसको यहाँ से कट कर दिया, एंड देन वी हैव टू गो फॉर ईच वी बिलोंग्स टू एडजेसेंट ऑफ यू, यानी अभी यू के एडजेसेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यू कौन है हमारा सी, और सी के एडजेसेंट कौन है, सी के एडजेसेंट अगर देखोगे तो सी का एक ही एडजेसेंट है दैट इज व्हाट है यू, एंड देयरफॉर हियर वी हैव टू गो फॉर यू। तो अभी ई के लिए हमें चेक करना पड़ेगा whether E belongs to Q and W of U भी E की वैल्यू ऑफ P और नॉट, यानी कंडीशन क्या बनेगा, कंडीशन रहेगा E belongs to Q and W of C less than equals to P वैल्यू ऑफ Q। तो आपका E belongs to Q है क्या, तो यस आपका E Q से बिलोंग करता है। और सेकंड जो कंडीशन है वो ये वाला एज कौन सा है, CE। इस CE एज का वेट जो है वो की वैल्यू से कम है क्या, तो CE इस पर्टिकुलर एज का वेट कितना है 1,
जबकि की वैल्यू ऑफ ई कितना इंफिनिटी, इससे कम है क्या, डेफिनेटली 1 इज लेस देन इंफिनिटी, दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू and therefore here we have to update the value of parent at the lag we have to update the value of e. तो अभी पाई ऑफ ई कौन बनेगा c, तो therefore पाई ऑफ ई will become c, और इसको ग्राफिकली हमने ग्रीन कलर से इस तरीके से इंडिकेट किया एंड देन अभी हमें की वैल्यू भी अपडेट करना पड़ेगा ई का, तो की वैल्यू ऑफ ई विल बिकम डब्ल्यू ऑफ ई सी और सी, तो वो वैल्यू होगा 1, तो हमने यहाँ पे इंफिनिटी को कट करके इसको कर दिया 1 और इसी अपडेशन को हमने परफॉर्म किया यहाँ पे क्यू में। तो एट द एंड ऑफ इटरेशन 3 हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से रहेगा। तो अगर फाइनल इटरेशन 3 के बाद का अगर हम आउटपुट देखते हैं तो अभी हमारे 3 नोड फाइनल हो चुके हैं जो कि क्यू से निकल चुके हैं, दैट इज ए बी एंड सी। ए का की वैल्यू है 0, बी का की वैल्यू है 2, जबकि सी का की वैल्यू है 1। एंड देन पेरेंट्स की अगर बात करेंगे तो बी के लिए पेरेंट जो है दैट इज ए, सी के लिए है बी और ई के लिए सी, जबकि डी के लिए पेरेंट को नहीं। तो दिस इज व्हाट द रिजल्टेंट ग्राफ आफ्टर इटरेशन 3। और अगर हमारे क्यू के कंटेंट्स हम देखेंगे तो हमारे क्यू के कंटेंट्स है क्यू विल कंटेंट्स ओनली 2 नोड दैट इज डी एंड ई। So with this particular input, now we have to go to next iteration, that will be our iteration number 4. So here we have iteration 4. तो इटरेशन 4 में फिर से हम चेक करेंगे क्या हमारा क्यू एम्प्टी है क्या, तो हमारा क्यू एम्प्टी है क्या, नहीं। आप देख सकते हैं अभी हमारे क्यू में कितने नोड्स हैं, अभी भी 2 नोड बचे हुए हैं एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू गो फॉर इटरेशन 4, क्यू इज नॉट एम्प्टी। जब क्यू एम्प्टी नहीं है तो सबसे पहले यू फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे क्यू में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो डी और ई में मिनिमम कौन है, ई, एंड देयरफॉर हियर वी हैव टू एक्सट्रैक्ट यू एंड यू विल बी इक्वल्स टू योर वी। तो हमें ई को यहाँ से कट करना पड़ेगा, तो हमने ई को यहाँ से कट कर दिया। ई को कट करने के बाद देन वी हैव टू गो फॉर ईच भी बिलोंग्स टू एडजेसेंट ऑफ यू, यानी अभी हमें एडजेसेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे हमारे ई के। तो आप देख सकते हैं ई के एडजेसेंट कौन से बचे, तो ई का एडजेसेंट एक ही बचा है दैट इज डी, एंड देयरफॉर वी विल बिकम एडजेसेंट ऑफ ई दैट विल बी इक्वल्स टू डी। तो अभी इस डी के लिए कंडीशंस चेक करेंगे, तो डी के लिए कंडीशन चेक करते कंडीशन बनेगा क्या हमारा डी क्यू पे बिलोंग करता है क्या, तो क्या हमारा डी क्यू पे बिलोंग करता है क्या, यस, डी बिलोंग्स टू क्यू। और सेकंड चेक करना है ये डी या फिर ई डी इसका वेट की वैल्यू ऑफ डी के मुकाबले कम है क्या, तो की वैल्यू ऑफ डी कितना है 3, जबकि इस एज का वेट कितना है 5। तो एज वेट जो है वो की वैल्यू के मुकाबले कम नहीं है एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर कंडीशन विल बिकम फॉल्स। अगर फॉल्स कंडीशन है तो देन डू नथिंग एंड दैट्स व्हाई हमें कुछ नहीं करना है। तो आउटपुट आफ्टर इटरेशन 4 अगर हम देखेंगे तो अभी हमारे टोटल 4 नोड्स फाइनल हो चुके हैं और इनके पेरेंट्स कुछ इस तरीके से हैं और इनके अपडेटेड डिस्टेंस कुछ इस तरीके से है एंड नाउ रिजल्टेंट ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से है विद इवेंट्स। और अगर हम हमारे क्यू के कंटेंट्स देखेंगे तो अभी हमारे क्यू में एक ही नोड बचा हुआ है दैट इज डी विद की वैल्यू इक्वल्स टू 3 एंड नाउ वी हैव टू गो टू आवर लास्ट इटरेशन दैट विल बी इक्वल्स टू इटरेशन 5। तो हियर वी हैव इटरेशन 5। फिर से चेक करेंगे क्या क्यू एम्प्टी है क्या, तो क्यू एम्प्टी है क्या, नहीं, अभी भी एक नोड बचा हुआ है। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट डू यू एक्सट्रैक्ट मिनिमम फ्रॉम क्यू, तो यू कौन रहेगा, एक ही नोड बचा है तो दैट विल बी डी, तो यू विल बी इक्वल्स टू डी। तो यू इज इक्वल्स टू डी हमने आइडेंटिफाई कर दिया, तो डी को भी हमने यहाँ से कट कर दिया। देन वी हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ वी, वी यानी एडजेसेंट ऑफ डी, तो अभी एडजेसेंट ऑफ डी कोई बचा हुआ ही नहीं है एंड दैट्स व्हाई देयर इज नथिंग टू परफॉर्म, तो आगे चल के हमें कुछ भी नहीं करना। तो आफ्टर इटरेशन 5 अगर हम देखेंगे तो आफ्टर इटरेशन 5 हमारे पांचों के पांचों नोट्स फाइनल हो चुके हैं और पांचों के पांचों नोट्स फाइनल होने के बाद नोड ए का की वैल्यू है 0, बी का की वैल्यू है 2, सी का की वैल्यू है 1, ई का की वैल्यू है 1, जबकि डी का की वैल्यू है 1। डी का पेरेंट है ये, बी के लिए ये है पेरेंट, सी के लिए बी पेरेंट है और ई के लिए सी पेरेंट है। और रिजल्टेंट ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, जबकि क्यू की बात हम करेंगे तो हमारा क्यू पूरी तरह से एम्प्टी हो चुका है, लेटेंगे। तो दिस इज व्हाट द फाइनल आउटपुट आफ्टर इटरेशन 5 एंड नाउ अगर हम फाइनल बात करेंगे तो फाइनली हमें जो ग्राफ मिला है विद पेरेंट एज वो कुछ इस तरीके का बना है एंड दिस इज व्हाट नथिंग बट आवर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो पर्टिकुलरली पूरा प्रिम्स एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद ओनली जो पेरेंट एजेस होते हैं वो पेरेंट एजेस आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री देते हैं। और अगर हमें कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री अगर कैलकुलेट करना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री की अगर कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो इट विल बी गिवन बाय द सम ऑफ द की वैल्यूज ऑफ ऑल द नोड्स। तो हमारे नोड्स कौन से थे, ए बी सी डी ई, और इनके लिए की वैल्यूज हमने हर इटरेशन में फाइनलाइज किए।
वो सभी का सम करेंगे। तो की वैल्यू ऑफ ए, की वैल्यू ऑफ बी, की वैल्यू ऑफ सी, की वैल्यू ऑफ डी एंड की वैल्यू ऑफ ई, ये सबका सम अगर हम करेंगे तो वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ एमएसटी। तो इन दिस वे हियर वी आर गेटिंग द कॉस्ट ऑफ एमएसटी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे प्रिम्स एल्गोरिथम से हो या क्रुस्कल एल्गोरिथम से हो, तो कॉस्ट ऑफ एमएसटी कैलकुलेट करते वक्त मैकेनिज्म जो यूज हो रही है वो डिफरेंट है। अगर आपको याद आ रहा होगा, क्रुस्कल एल्गोरिथम में हमने कॉस्ट ऑफ एमएसटी जो कैलकुलेट किया था, दैट वाज बाय एडिशन ऑफ द एजेस व्हिच वी हैव इंक्लूडेड इनटू द मिनिमम स्पैनिंग। जबकि यहाँ पे एजेस की कॉस्ट हम ऐड नहीं कर रहे, यहाँ पे ऐड जो कर रहे हैं वो है जितने भी हमारे नोट्स है वो नोट्स का की वैल्यू। तो की वैल्यू या फिर डिस्टेंस वैल्यू ऑफ ऑल द नोट्स, वो सबका सम अगर हम करेंगे तो देन वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ एमएसटी बाय यूजिंग Prim's algorithm. So this is all about stepwise illustration of Prim's algorithm in order to compute the minimum spanning. And now here you have one assignment problem for you. तो यहाँ देख सकते हैं हमने टोटल 6 नोट्स दिए हुए हैं, and here you have to apply Prim's algorithm and you have to do the stepwise illustration to compute the minimum cost spanning tree. You have to assume vertex A as a source vertex. तो वर्टेक्स ए को सोर्स वर्टेक्स कंसीडर करना है। फिर से ग्राफ दिया है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, और आपके एज वेट्स कुछ इस तरीके से है। याद रहे आपको सोर्स जो कंसीडर करना है, दैट इज व्हाट वर्टेक्स ए। तो व्हाटएवर द इनपुट आई हैव प्रोवाइडेड टू यू इनटू दिस पर्टिकुलर वीडियो, इस पूरे इनपुट को यूज करते हुए इस पर्टिकुलर असाइनमेंट प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू कंप्यूट मिनिमम स्पैनिंग ट्री बाय यूजिंग Prim's algorithm। थैंक यू।